अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय, मैं 5 लोकसभा का सांसद था यहां। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, या फिर विपक्ष का कोई और नेता हो, वो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। यानी कि नए प्रकार से जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम काटे जा रहे हैं, उनको लेकर विपक्ष का विरोध हमेशा से रहा है, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और अब तक। और इस एसआईआर की प्रक्रिया में लगभग 30 से ज़्यादा बीएलओ की जान जा चुकी है। कुछ बीएलओ की जान तो अब ये भी बताया जाता है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत था, काम बहुत ज़्यादा दिया जाता था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया या फिर आत्महत्या कर ली। इस तरह की खबरें आई और नाम भी आए, वीडियोस भी आई। लेकिन अब जब एसआईआर के ऊपर संसद में चर्चा के लिए सरकार ने माना, और इसके बाद आज जो 9 तारीख है, आज 9 दिसंबर है, और आज के दिन में जब एसआईआर के लिए चर्चा हो रही है, इसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने बहुत खास मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले आप राहुल गांधी के कुछ वीडियोस को आप देखिए। ये वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन आप थोड़ा सा सुनिएगा, इसके बाद हम इसको हिंदी में बताएंगे। That the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner. What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman
who appears 22 times on the voter list of Haryana. तो सवाल ये है कि राहुल गांधी के पूरे भाषण में 3-4 पॉइंट है जो समझने लायक है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो मशीन रीडेबल है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा जो है उसको हमें क्यों नहीं दिया जाता। आज भी हमें बैलेट पेपर का वो यानी कि पेपर में जो फॉर्म होते हैं, जो वोटर लिस्ट होता है, उसको पेपर के जरिए दिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा मिल जाता और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिल जाते तो इससे हमें जांच पड़ताल करने में आसानी हो जाती। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला गया, यानी कि जो 45 दिनों के बाद सीसीटीवी वीडियोग्राफी है, फुटेज है, इसको सबको डिलीट क्यों किया जाएगा। क्या हमारे पास मेमोरी कार्ड की कमी है, स्टोरेज की कमी है, या फिर डिवाइस की कमी है कि हमारे पास उतना उपकरण है ही नहीं कि जिसमें हम वोटिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज वीडियो जो है उसको रख सकें। तीसरा, हमें ईवीएम देखने के लिए दी जाए, वोट चोरी एंटी नेशनल काम है। हम महान लोकतंत्र और सरकार चुनाव में सुधार नहीं चाहती, यानी कि हमारा लोकतंत्र बहुत महान है और सरकार जो है वो चुनाव में सुधार नहीं करना चाहती। ये राहुल गांधी के मुद्दे हैं। उन्होंने 3 सवाल क्या उठाए हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया, यानी कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमिश्नर के चीफ का जब नियुक्ति होती है, उनको जब बनाया जाता है तो उसमें 3 लोग रहते थे पहले। एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ करता था, दूसरा नेता विपक्ष हुआ करता था, तीसरा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने 2023 में बताया जाता है कि एक कानून लेकर आए और इस कानून में सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज को उस प्रक्रिया से निकाल दिया गया। अब वहां पर क्या किया गया, अपने एक मंत्री को और बना दिया गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह 2 लोग हो गए, एक नेता विपक्ष। ऐसे में अगर नियुक्ति की जो फॉर्मेलिटी होती है कि जिनका ज़्यादा पक्ष मजबूत होगा उसी के जरिए सुझाया गया नाम को ही इलेक्शन कमिश्नर का चीफ बनाया जाएगा। तो ऐसे में अगर मजबूत पक्ष हम 3 लोगों में देखते हैं, जिसमें पीएम है और येलोपी है और अमित शाह जी हैं, यानी कि तो ऐसे में तो अमित शाह और मोदी जी की पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है और यहाँ येलोपी कमजोर हो जाता है। तो हमेशा तो ऐसे ही होता रहेगा कि इलेक्शन कमिश्नर वही बनेगा जिसको प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लोग चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये था। दूसरा, दिसंबर 2023 में कानून बदला गया कि चुनाव आयोग को दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों किया गया, यानी कि चुनाव आयोग अगर छोटी बड़ी गलतियां कर देता है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, ना उसे जेल जानी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। अगर वो कह देता हमसे गलती हो गई, हम सुधार करेंगे, बस यही बात खत्म हो जाएगी, हम उसके ऊपर कोई याचिका दायर नहीं कर सकते। ये नियम बनाया गया। तीसरा, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गए, यानी कि 45 दिनों के बाद आप किसी वीडियोग्राफी को जो वोटिंग का बूथ का है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये 3-4 चीजें हैं जो बताती हैं कि एक तो अगर आप सत्ता पक्ष में पीएम और अमित शाह जी को रख देते हैं चुनाव इलेक्शन के चीफ की नियुक्ति के लिए, तो पलड़ा हमेशा उन्हीं का भारी होगा और उन्हीं का सुझाया हुआ नाम और वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो इसमें येलोपी कुछ कर ही नहीं सकता। और दूसरा, जब आपने कानून बनाया कि ये कानून क्यों बनाने की जरूरत पड़ी कि अगर चुनाव आयोग कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, उसे कभी दंडित नहीं किया जा सकता, क्यों? ये दिखाता है कि कुछ न कुछ अपने फायदे के लिए यहाँ पर किया गया है ताकि हमारा फायदा हो सके और इससे हम मनमानी तरीके से चुनाव इलेक्शन या फिर और कोई प्रक्रिया हो उसमें काम कर सके। ये 3-4 सवाल हैं। अखिलेश यादव की एंट्री होती है। अखिलेश यादव ने भी कुछ खास मुद्दे उठाए हैं। अब अखिलेश यादव की इस वीडियो को जरा देखें। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं,
अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिरकार भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि सरकार जो है चुनाव आयोग के साथ मिलकर एसआईआर के बहाने एनआरसी वाला काम कर रही है। यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, जो ये खुलकर नहीं कर सकते वो एसआईआर के बहाने हो रहा है। यानी कि लोगों को हमें किस तरह से रखना है और किनका वोट काटना है, किनको कैसे कर बाहर निकालना है, ये सारी प्रक्रिया हो रही है उत्तर प्रदेश एसआईआर के बहाने। और कौन भारत का नागरिक है, नागरिकता क्यों है, कैसे है, सभी चीज़ एसआईआर के बहाने की जा रही है। अखिलेश यादव ने काफ़ी गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा से चाहते थे कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। जो भी देश हैं, हमसे बड़े जो देश, चाहे अमेरिका, अफ्रीका, जो भी बड़े देश हैं, सभी जगह ईवीएम का चुनाव बंद करके बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। पर हमारे भारत में आज भी ईवीएम क्यों चल रहा है? हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। तो पूरी वीडियो आपने देखा किस तरह से एसआईआर का मुद्दा आज संसद में उठा है। अभी तक हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 7:24 हो रहे हैं, शाम का वक्त है। ये वीडियो सुबह 7 बज के 10 पे पड़ेगा। तब तक हो सकता है कि जवाब और सवालों में कुछ बदलाव हो, लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया है उसको हम आप सबके सामने स्पष्ट से रख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।